انار استعمال کریں. انار لیتے ہوئے نا یہ سوچیں کہ ہم باہر کی چیزیں کتنے کی لیتے ہیں جن کو کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد الٹے ڈکار آتے ہیں، اور الٹے ڈکار آنے کے بعد رات کو خواب آتے ہیں. ہمارے انصاری صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں سامنے بیٹھتے تھے، وہ فرماتے تھے، ہمارے ایک بابا جی تھے، وہ کہتے تھے ایک دفعہ صبح غصے میں آ گئے، مجھے جنات انجیکشن لگا رہے تھے، اٹھ کے اس نے ہاتھ مار دیا. وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو انصاری صاحب فرماتے تھے بھائی اس کو آلو گوبھی نہ کھلاؤ، اس کو گیس اٹھتا ہے، بادی اٹھتی ہے، پھر یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. میں آج کچھ صحت کی باتیں بتا رہا ہوں، آج کچھ تندرستی کی باتیں بتا رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو جنت سے آتا ہے، ہر انار میں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب انار کھانے بیٹھتے تھے تو کوئی دانہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، کوئی دانہ بھی گم نہیں ہونے دیتے تھے. انار کے ایک ایک پرت کو کھول کھول کے اس میں سے دانہ نکالتے تھے. فرماتے تھے شاید یہ دانہ جنت کا ہو، شاید یہ دانہ جنت کا ہو، کیونکہ جنت میں انار کے بہت تذکرے ہیں. انار استعمال کیا کریں. آج کل انار کا سیزن ہے، اور بہترین انار بتاؤں کون سا ہوتا ہے؟ جس میں ہلکا کھٹاس ہو. دہی کی سب سے بہترین ترتیب یہ ہے، دہی دنیا کا سب سے بہترین وہ ہے جس میں ہلکا کھٹاس ہو، اور جو سارا میٹھا دہی ہے وہ کچا ہے، وہ صحت نہیں ہے. دہی جو 100% پکا ہوا ہوتا ہے اس میں ہلکا کھٹاس آئے گا، اور اصلی دہی ہے ہی وہی، صحت مند دہی ہے ہی وہی. انار کے خشک چھلکے لے لیں. 1 کلو انار کا چھلکا تو اس میں 50 گرام زخم حیات بوٹی خشک ہوتی ہے، اور 50 گرام کلونجی، یہ باریک پیس لیں. اور پھر اس کی آدھا چمچ یا 1 چمچ، چائے والا 1 چمچ. معدے میں السر ہو، زخم ہو، معدہ کام نہ کر رہا ہو اور معدے میں تکلیف ہو، اس کے لیے کہتے ہیں ہے. یہ ٹینشن کا دشمن ہے، نیند نہیں آتی اس کا بٹن ہے. ترکی کی کانفرنس میں مجھ سے کہنے لگے آپ کا ٹوٹکا میں نے آزمایا اور 9 کلو وزن کم کیا موٹاپے میں. کون سا ٹوٹکا آزمایا؟ کہنے لگے آلو بخارے کا آپ نے بتایا تھا. جو بندہ آلو بخارا چوسے گا، خشک آلو بخارا ٹافی کی طرح چوسے گا، دن میں 4 5 6 7 8 9 گھنٹے کے بعد، 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد چوسے گا، اور منہ میں رکھ کے ہلکا ہلکا چوستا رہے گا. میں نے کہا آلو بخارے کا ہے؟ کہا میں کئی کلو آلو بخارے چوس گیا ہوں اور میرا 9 کلو وزن کم ہوا. اور واقعی ایسا ہے، ہائی بلڈ پریشر کا دشمن ہے آلو بخارا. جتنی خون کی کمی ہو، 3 دانے انجیر کے اور 3 چمچ سیب کے سرکے کے رات کو بھگو دیں، صبح دانے بھی کھا لیں، سرکہ بھی پی لیں، کسی بھی قسم کی خون کی کمی ختم ہو جاتی. ایسا ٹانک جس سے بوڑھا دوڑنے لگے ہانپے بغیر، بیٹھنے میں اٹھے، اٹھنے میں بیٹھے، اور اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس نہ کرے. اگر آپ ہر وقت تھکے رہتے ہیں، افسردہ رہتے ہیں، ٹوٹے رہتے ہیں، جھکے رہتے ہیں، بوجھے رہتے ہیں، تو یہ ٹانک ضرور آزمائیں. صرف 1 چمچ روزانہ کھائیں اور پھر کمال دیکھیں. جی ہاں، یہ سچ ہے، اور وہ بھی ایک ایسا سستا ٹانک جو آپ کی جسمانی طاقت کو عروج پر لے آئے. وہ جنتی ٹانک ہے، وہ قرآنی ٹانک ہے، وہ نبوی ٹانک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایسے عرب کی کہانی سناؤں اور سچی داستان سناؤں جس نے 4 شادیاں اور اس کی صحت اور طاقت کا راز کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کے عنوان میں ایک ایسی جڑی بوٹی کا میں تذکرہ کروں گا جس کا تذکرہ قرآن میں ہے اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے. وہ بوٹی پہلے سن لیں کیا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے کمالات، اس کی حیرت انگیز برکات، اس کو صحت کے راز آپ توجہ فرمائیں. کچھ سال پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک بہت بڑے ڈاکٹر مشورے کے لیے تشریف لائے جو جڑی بوٹیوں سے علاج کو زیادہ نہیں مانتے تھے اور یقین بہت کم رکھتے تھے. ویسے بھی اب ادارہ عالمی صحت نے ہربل ہیلتھ کو، یعنی جڑی بوٹیوں کے علاج کو، ایک مستند طریقہ علاج تسلیم کیا ہے. عالمی ادارہ صحت WHO نے ہربل ہیلتھ کے حوالے سے ایک نیا منصوبہ بنایا جس کا نام ہے ٹریڈیشنل میڈیسن 2025 سے 2034 تک. اس کا مقصد جڑی بوٹیوں اور پرانے طریقہ علاج کو باقاعدہ دنیا بھر میں تسلیم کیا جائے. اس کے علاوہ یہ ادارہ پوری دنیا میں رائج جڑی بوٹیوں کے علاج کو
कानूनी, साइंसी और महफूज तरीके से इलाज का हिस्सा बनाने पर काम कर रहा। 2025 में हर्बल मेडिसिन यानी जड़ी बूटियों की आलमी मार्केट तकरीबन 105 अरब डॉलर है, जो कि 2034 में एक अंदाजे के मुताबिक 580 अरब डॉलर से मुतजाविज कर जाएगी। दुनिया जड़ी बूटियों की तरफ लौट आई है, टूट पड़ी है, चल पड़ी है, थक हार के आकर वापसी हुई है। तो मैं बात कर रहा था एक बद्दू की ताकत का राज। उन्हीं डॉक्टर साहब ने मुझे एक नुस्खा बताया जो उनको एक अरब बद्दू से मिला। उन्होंने बताया कि मेरे पास अस्पताल में आया, मैंने बड़ी तवज्जो से और ध्यान से उसका इलाज किया। इलाज के बाद मुझसे कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं आपको एक तोहफा देता हूं, लेकिन तोहफे से पहले उसके फायदे सुन लें। आप जिस तरह भी जितने पुराने मरीज हों, जोड़ों के, कमर के, पट्ठों के, आसाब के, डिस्क के, खिंचाव के, तनाव के, पट्ठों का खिंचाव, आसाबी तनाव, जिस्मानी कमजोरी, दिमागी कमजोरी और खास ताकतों को बहुत ज्यादा ऐसी कमजोरियों का शिकार जो भी लोग होंगे उनके लिए टोटका निहायत बेहतरीन और लाजवाब है। मौसम गर्मा में इस्तेमाल करना है तो बहुत कम करें, लेकिन मौसम सरमा में खुले दिल से करें। हाँ, इस दौरान मक्खन और दूध का इस्तेमाल ज्यादा करना बहुत जरूरी है। ये ना समझें कि मक्खन दूध मेरे दिल में चर्बी या कोई ऐसे अज्जा जिससे नुकसान पैदा होंगे, हरगिज नहीं। ये दवाई खुद ऐसी चीज है जो चर्बी को घुला देती है, हमारी शरियानों को कुशादा करती है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन यानी हमारे दौरान खून को बहुत लाजवाब करती है। फिर उस बद्दू ने सीना तान कर कहा, मेरी 4 शादी हैं, चारों बीवियां मुतमईन, मैं तंदुरुस्त हूँ, मेरी औलाद भी तंदुरुस्त। फिर उस बद्दू ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू का एक वाक़या सुनाया। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन के पास एक केस आया। केस ये था कि एक साहब ने बुढ़ापे में शादी की, कुछ अरसा बीवी के साथ रहे, फौत हो गए, बच्चा पैदा हुआ, बीवी ने जायदाद में हिस्सा मांगा। बड़ी बीवी की औलाद ने दावा का जवाब ये दिया, ये तो हमारे वालिद की बीवी थी ही नहीं, ना ये बच्चा हमारे वालिद का, फैसला ये करना था ये बच्चा उस औरत में से है, इस बूढ़े का है। आखिर ये केस हज़रत अली को सौंपा गया। हज़रत अली ने फरमाया कि फैसला कोई मुश्किल नहीं। तो हज़रत अली ने चंद बच्चे इकट्ठे किए, उन बच्चों को इन बच्चों के साथ शामिल किया, सब बच्चों को दौड़ाया, ये बच्चा पीछे रह गया। फिर बच्चों को इकट्ठा किया, सबको कहा बैठ जाओ। अचानक फरमाया यकायक उठो, सब बच्चे उठे। ये बच्चा उठा सही लेकिन सहारा लेकर। फरमाया वाकई ये बच्चा उस बूढ़े का है कि बुढ़ापे की औलाद इस वजह से दूसरे बच्चों से कम ताकतवर है, लिहाजा फैसला हुआ कि इसको जायदाद में हक मिलना चाहिए। बाद में मजीद तहकीकात हुई तो निकाह के गवाह मिले और हकीकत खुल के सामने आई। उस बद्दू ने वाक़या सुनाने के बाद कहा, मेरी बुढ़ापे की औलाद इस नुस्खे की वजह से बूढ़ी नहीं, मेरी बुढ़ापे की औलाद तवाना और तंदुरुस्त है, उसकी वजह यही नुस्खा है। डॉक्टर साहब ने इस बद्दू का यह ताकत का फार्मूला मुझे भी दिया। बेशुमार मरीजों की कमर की बेल्टें उतर गईं, शैटी का, लंगड़ी का दर्द टांग में शुरू होता है वो खत्म हो गया। ऐसे लोग जो जिंदगी भर के लिए थके रहते थे और बीमारी में हर वक्त डूबे रहते थे, उन्हें ऐसी शिफायाबी मिली, वो खुद हैरान। एड़ियों का दर्द, पाँव का दर्द और तमाम दर्द वो जो जिस्म में मौजूद हैं इस बद्दू के टोटके से खत्म हो गए। बल्कि बाद लोगों ने मुझे इसके तजर्बात मुशाहदात में ये बताया कि ऐनक उतर गई, नजर तेज हो गई, याददाश्त लौट आई और पुरानी भूली हुई बातें अजबर हो गई। तबीयत ऐसी हशाश बशाक के खुद हमारी अक्ल भी हैरान, इस दवाई से इतना फायदा, इतना नफा कैसे हुआ। कुछ लोग जो किसी तशद्दुद और हादसे की वजह से अपनी कुव्वतें खो बैठते हैं, जब उन्हें ये दवा इस्तेमाल की और ये नबवी ग़िज़ा इस्तेमाल की, नबवी दवा, तो उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उस बद्दू को एक और फायदा भी हुआ था जिसकी वजह से औलाद तंदुरुस्त थी और वो भी याद रखेगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। लाजवाब फार्मूला है, ताकतों, कुव्वतों और दर्दों के लिए बहुत आजमूदा। आए मैं आपको वो टोटका देता हूँ। ये देखिए मेरे पास अदरक है, सुंठ कहते हैं, कुरान में इसको जंजबील कहते हैं और कुरान ने इसको सूरत दहर में बयान किया है, यस्कौन फीहा कासन काना मिजाजुहा जंजबीला, कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू क़यामत के दिन जन्नत में ऐसे जाम पिलाएंगे जिनमें मिजाज जंजबील, इसका जायका होगा। अदरक जिसे सुंठ कहते हैं, एक चटांक ताज़ा हो, फामी ना हो, उसे बारीक पीस लें यानी कद्दूकश कर लें और फिर इस अदरक को 4 बड़े चम्मच मक्खन या देसी घी में सिर्फ 3-4 मिनट हल्का ब्राउन करें। काली मिर्च पीसी हुई 3 चम्मच, दालचीनी पीसी हुई 3 चम्मच, इस पर छिड़क कर हिलाएं और फिर 3 मिनट इसके बाद चूल्हा बंद करें और इसको हिलाते रहें। ठंडा होने पास महफूज रखें। जब भी खाना खाएं, खाने के साथ आधा चम्मच
चौथाई चम्मच या 1 चम्मच जरूर खाएं, वरना आमतौर पे चाय या गर्म दूध के साथ आधा चम्मच, 1 चम्मच या चौथाई चम्मच इस मुरक्कब का यानी अदरक के इस फार्मूले का जरूर इस्तेमाल करें। आप चाहें सुबह शाम कर सकते हैं, आप चाहें दिन में 2 दफा कर सकते हैं, और जितनी दफा आपको तबीयत में मुनासिबत हो, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, और फिर इसके बाद इसके कमालात देखें। यकीन जानिए, छोटा सा अमल, छोटा सा टोटका एक बार बनाएं और इसे मुस्तकिल इस्तेमाल करें। आप गुमान नहीं कर सकते इस छोटे से टोटके में क्या ताकत है। नबवी ग़िज़ाओं में इसका शुमार है, कुरानी ग़िज़ाओं दवाओं में इसका शुमार है, और ये दवा भी है, ये ग़िज़ा भी है, ये अता भी है, और ये शिफा भी है। अदरक का टोटका आपके सामने है, इसे छोटा छोटा आप काट लें, हल्का हल्का तराश लें, वरना इसे कद्दूकश कर लें और हल्का हल्का तराश के आप इसको इस्तेमाल करें। इसके अंदर खुद एक महकती खुशबू है, खुद एक सुबहान अल्लाह ऐसी लाजवाब खुशबू है। इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, सदा सलामत रहें, और सेहत इसके लिए कि मैं सेहतमंद रह के मखलूक की खिदमत करूंगा और खालिक की इबादत। मैंने आज तक उस बंदे की जरूरतों को डूबते नहीं देखा, उभरते देखा है। मैंने आज तक उस बंदे की जरूरतों को पूरा होते देखा है। उस बंदे को शान मिली है, शौकत मिली है, इज्जत मिली है, वकार मिला है, जरूरतें पूरी हुई हैं। ये मेरी तरतीब नहीं है, मैंने कोई नई इजाद की है। ये सदियों से हमारे बड़ों के ये अमल हैं, सदियों से हमारे अकाबिर के ये अमल हैं, और सदियों से हमारे बड़ों की यह तरतीब है। सदियों से जिंदगी में जब भी कहीं मुश्किलें आई हैं, औलाद नहीं है, रिस्क नहीं है, सेहत नहीं है, इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है, जादुओं ने घेर लिया, बंदिशों ने तबाह कर दिया, हासिदीन ने बर्बाद कर दिया, मुश्किलों ने सर चढ़ के हमें झुका दिया, हालात ने हमारी जिंदगी को तंग कर दिया, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। मैंने आज तक उस बंदे की जरूरतों को डूबते नहीं देखा, उभरते देखा है। मैंने आज तक उस बंदे की जरूरतों को पूरा होते देखा है, और हमेशा पूरा होते देखा। जिंदगी में हमेशा ये तजर्बा किया है। उन्होंने कहा मेरा बेटा नहीं था, मेरा बेटा हुआ, और फिर उसका नाम मैंने आउन मोहम्मद रख। जिसकी कोई मुश्किल आई है, परेशानी आई है, नाकामी आई है, उलझन आई है, जिंदगी में कोई परेशानी आई है, मैंने तो जिंदगी गुजर गई। मेरे आका के घराने को जिसने भी हदिया किया अमाल का पैसों का सदका दिया, किसी गरीब की खिदमत की, किसी गरीब को कपड़े दिए, सूट दिए, लिबास दिया, किसी गरीब की जरूरत कोई पूरी की, और वो उसका सवाब उन हस्तियों को हदिया किया। हुजूर के घराने को लिबास की शक्ल में, खाने की शक्ल में, प्यासे को पानी की शक्ल में, और नेकी और अमाल की शक्ल में, इबादत और तस्बीह की शक्ल में उनको हस्तियों को हदिया किया। 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की आप पढ़ें और पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करें, हस्तियों को हदिया करें, हुजूर के घराने को हदिया करें।